Hello, all of you, and I welcome you all to this brand new initiative of Studyplexity for CLAT and judiciary aspirants. It gives me immense pleasure to come up with the first episode on current affairs for all the aspirants who are willing to get into top law schools and judicial services. The weightage and the gravity of current affairs is huge in these examinations. If we go by the metrics and we quantify the number of questions, the questions in CLAT specifically, because this particular session is dedicated to CLAT aspirants. In CLAT, you have 120 questions. Out of those 120 questions, the number of questions in current affairs can go up to 30, 32, 35. The nature and character of current affairs is dynamic. It changes every moment, and that is the reason why it also becomes a little cumbersome and difficult for the students to cover. In order to fill this gap, we are here to deliberate upon the most important current affairs, the events of national and international importance which are undergoing across the globe. मुझे उम्मीद है कि हमारे इस इनिशिएटिव से आप सबका फायदा होगा. इसके साथ हम बहुत सारे क्लैट से रिलेटेड we are launching a course which will be online and offline too. So after you see the lectures, you can come up for these courses. You can inquire about the courses. We have all our numbers flashing on the screen. We can then take things further. मेरी आपसे ये गुजारिश है, I have a sincere request that when we discuss current affairs, we have to first expand our horizontal space. When I say expanding horizontal space, I mean that if you read a topic, you have to connect dots which are relevant. So if we are reading about the Iran conflict that is going on, then we have to know the geography of that place. We also have to know about the historical genesis of this entire conflict. We also have to understand that what groups are operating there and what are their interests. The conflict is not new. You might have already heard of this conflict in your previous years of schooling and academics, but now it has flared up. So this particular class will be dedicated to these 40 odd years when no one was naming it as a war. कोई इसका नाम, कोई इसे एक जंग, एक conflict के तौर पे नहीं देख रहा था, but things were simmering. This conflict was brewing and it was bound to happen. We will, in today's class, analyze these 40 years since the Islamic Revolution in Iran till the breakdown of all the deals that would have been possible with Iran. So the time lapse or the time period about which we are going to discuss today is 1979 to 2018. Why have I chosen these 2 years, 1979 to 2018? Because in the year 1979, you had the Islamic Revolution. 1979 was the year when you had the Islamic Revolution in Iran, and 2018 was the year when the Trump administration, they striked off the deal that was possible with Iran, and that could have led to some bit of peace that could have prevailed in the entire region. So 2008 was the breakdown of deal. Which deal? The deal popularly known as the nuclear deal with Iran, and the technical name is Joint Comprehensive Plan of Action. We will discuss about all of it, but at the very outset, I want to set a premise for you. I want to tell you that we are not going into the historical thing because we will discuss about all those things. We'll discuss about religion. We'll discuss about civilizations. We will discuss about the problem of Israel and Palestine. We will also discuss about all the wars that Israel has fought. We will also discuss about the bonhomie between Israel and all the Sunni countries. And when I say Sunni, then we also have to go back and trace what is Sunni Islam and how does it differ from Shia, and what is that conflict. But everything will fall in place when you understand these 40 years first. So the intention of this particular class is to first make you understand about these 40 years, then we will move further left and further right. That means we will go back from 1979 to approximately 3500 BC. So this 1979 will then be traced back to 3500 BC, and we will see what all transpired here. Everything that went on, everything right from the birth of all these three Abrahamic religions, all
from the same lineage of Ibrahim or Abraham, and that is why they are known as Abrahamic religion, Judaism, Christianity, and Islam. We will see the birth of these religion, and then we will see why do they have these conflicts between them. We will see the importance of Jerusalem. We will see the growth of Roman Empire. We will see how Christianity developed. We will see the first exodus of Jews from this region. We will also analyze that what was this particular lust with this geography for Israel. They claim that it was the promised land, and that is why they came back at the behest of different countries, Britain being the primary country, after some declarations that I don't want to name right now. I don't want to burden you with names at the very first class. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस क्लास से मेरी जो नीयत है, मेरा जो मोटिव है, वो है कि मैं इन 40 सालों को आपके सामने रखूं, और जब हम अगले एपिसोड्स में मिलेंगे तो हम इस 1979 के पीछे चलेंगे, और जब हम इससे पीछे चलेंगे तो कहानियां बहुत सारी होंगी. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, if I go back from 1979, I have to go back first to 1948, which is the year of birth of Israel as a nation. And then we have events, the war of 1948, Israel war. 1948, we see a conflict. 1967, we see a conflict. 1973, we see a conflict, please. And then we will go back further and we will see what was Balfour Declaration. We will go back and see what was Zionist movement. We will also touch upon the Holocaust that was running here. Holocaust, that was the extermination, the persecution of Jews in Europe, and primarily the Nazi party that was carrying out. We will touch upon everything, but not in today's class. I'm just giving you an overview that after doing this, what all do we have on our platter. कौन कौन सी चीज़ हमारे मेज़ पे रखी है, किन किन चीज़ों का स्वाद हम लेंगे, हम सारी चीज़ों के बारे में बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? आज हम 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में होता है, उसके बाद कैसे वहाँ पे एक थियोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, और उसके बाद हम उसके नीचे आएंगे और 2018 तक जो सिमरिंग, जो प्रॉब्लम्स विच वर ब्रूइंग बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द वेल, जो दिक्कतें थीं, वो कैसे 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 ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती गई, और 2018 में when the Trump administration striked off the nuclear deal that was conceived by Obama, and then things started taking a different shape. हम और पीछे चलेंगे and we will see what all was going on. We will see empires like the Ottoman Empire. And then we will go back and see the birth of Islam. And when we see Islam, we will also check what is the importance and significance of Jerusalem. Once you understand this, we can also go back and trace the birth of Christianity and what do Christians have in contention, what do they have in enmity with the Jews. क्यों Christians और Jews में बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही. So we will check Christianity, and we will also see the growth of Christianity like the Roman Empire. Once we see the Roman Empire, we can also check upon the first exodus, I'm writing exodus of Jews. Jews क्यों भगाए गए वहां से? क्योंकि वो तो वहां रहते थे, वहां पे जेरूशलेम के आसपास Jews were there. उन्हें क्यों भगाया गया, हम सारी चीजों के बारे में समझेंगे. इसके और थोड़ा पीछे चले, then we can go into more empires like Mesopotamia and Sumerian Empire, Sumerian dynasty, and then we can also see some bit of Egyptian civilization and the annexation by other rulers. So once we are done with this, we will get into Judaism and contemporary civilizations. So this would be the flow chart. Not today, I should be writing it here. I should write it here so that you don't face any confusion. This is what I intend to teach you. The birth of Judaism and civilizations.
ये एक तरफ का चेन कंप्लीट कर देगा। ये 1979 के बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं, वी हैव मूव्ड बैक टू 3500 BC, प्लीज अंडरस्टैंड। हम यहाँ से ये आज करेंगे और उसके बाद, क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, ये कहानी का सबसे रोचक पहलू हो सकता है। दिस कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंगेजिंग सेगमेंट ऑफ द एंटायर स्टोरी। आप एक मूवी देखते हैं, उसमें 15 मिनट बहुत खास हो सकते हैं, वो 15 मिनट को पीछे खींचें और उसी 15 मिनट को आगे खींचें तो आपको पूरी मुकम्मल कहानी दिखती है। यू विल सी द एंटायर स्टोरी व्हेन यू पुल इट बैक, गो बैक, फ्लैशबैक, या उसके आगे फिर आप कहानी बढ़े। ये आज की कहानी होगी और इसके पीछे की कहानी इतनी सारी। 2018 के बाद क्या चीजें बदलती हैं, देन वी सी द ग्रोथ ऑफ, और हम देखते हैं कि यहाँ पे वी कम अप विथ an idea of US and Israel. They want to make it Israel centric. They want to make the entire West Asia. And when I say West Asia is a term that we should be using sitting in India, because this region is to the west of us. This region is also known as Middle East, but that is a very Eurocentric term. मेरी बात समझिए, मैं इस चीज को वेस्ट एशिया बोलूं, उधर पश्चिम में रहने वाले लोग इनसे मिडिल ईस्ट बोले। मुझे वेस्ट एशिया इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं, दिस इज माय पीओवी, माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो मिडिल ईस्ट बोलते हैं तो दैट इज देयर थिंग, दैट इज देयर पॉलिसी, और उन्हें बोलना चाहिए, उनके लिए तो मिडिल ईस्ट ही है। मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया वन एंड द सेम थिंग, but it also gives out a message. When we say West Asia, that means we have kept ourselves at the center, and then we are looking towards a particular region, and that region is known as West Asia. When we call it Middle East, you will see a lot of people calling it Middle East sitting in India also, but that is to give out a message. That gives out a message that you are following the Eurocentric point of view of the world. आप यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीजों को, इसीलिए आप उसे मिडिल ईस्ट कह रहे हैं। हम भारत में रहने वाले लोग, हमें इसे वेस्ट एशिया ही कहना चाहिए। ये एशिया का पश्चिमी भाग है, हम यहाँ पे कहीं पे हैं, हम दुनिया में, हम पृथ्वी पे कहीं यहाँ हैं, और हमारे लिए ये पश्चिम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्योग्राफी का इतना सेंस आ गया है। दिस रीजन दैट यू सी इन दिस कलर इज वेस्ट एशिया फॉर अस, मिडिल ईस्ट फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड। I hope you're getting what I'm trying to say. So this is what we are going to cover in episodes to come. The title of this entire module is Connecting the Dots, and this is what we are doing. हम हर उस डॉट को कनेक्ट करेंगे जिससे हमारा विस्तार हो। हम हर उस डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे which will lead to a horizontal expansion of our dimensions. हम नए आयामों को जोड़ेंगे अपने साथ, और इससे उत्पन्न हुए कोई भी सवाल, any question that emanates out of all these topics should be well within our reach. यही मेरी उम्मीद है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से। आगे बढ़े। 2018 में यहां तक तो आज करेंगे। दिस इज टुडेज, आई एम रिपीटिंग बिकॉज आई वांट यू टू बी फिक्सेटेड। आपका प्रेमाइस ये होना चाहिए, ये तो हम जो करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ डील विथ ईरान। 2018 में जब ये बात हो गई कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू साइन एनी डील विद द इरानियंस बिकॉज दे आर बीइंग नोटोरियस, एंड दिस वाज एट द बिहेस्ट ऑफ द इजराइलीज। उन्हें ऐसा लगता था कि either you sign a deal or not, they are going to come up with a nuclear weapon and they are going to destabilize the entire region. They are also trying to become the representatives of Islam in this region. This is what a general world view is. उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान जो कि यहाँ बैठा है वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड, जो which is coincidentally these all are Islamic countries barring Israel. Iran wants to become the representative of the entire Islamic world, and being a Shia country, we will know what is a Shia. So when I have written Islam, I should also write that we will understand what is the distinction between, not with Jerusalem, we will understand what is the distinction between Shias and Sunnis. When I say Jerusalem, we will see what is the Western Wall. We will see the dome. What is this dome all about? We will see what is the Church of Holy Sepulchre. We will check all of it, but not in today's class. This is what we are going to do in classes to come. 2018 में डील खराब हो गई और हर किसी को लगा दो चीज। पहली चीज, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा और इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। दूसरी चीज, हर किसी को यह लगा ईरान बीइंग अ शिया कंट्री विल बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड बिकॉज इट कैन wield power. It can wield power and it is not into any strategic allyship with any other country at this point in time. वो किसी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती में नहीं है, तो it is very sovereign in what it can do in future. वो बहुत संप्रभु है, अपने मन का कर सकता है, इसीलिए वो पावर wield कर सकता है। तो यूएस और इजराइल ने ये प्लान किया कि हम जितने भी ये सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, we will try and club them up
and we will come up with some kind of an accord. इसीलिए 2020 में they signed an accord, and the accord is very popularly known as the Abraham Accord. Abraham Accord. Can you see the name Abraham coming again? Abraham comes from the same name Abraham, which is the common forefather of all these three religions. ये जो तीन दुनिया के प्रमुख religion है, they come from the same lineage of Ibrahim or Abraham. That is why they are known as Abrahamic religions. अब्राहम अकॉर्ड साइन किया जाता है, यूएई पार्टिसिपेट करता है, बहरीन पार्टिसिपेट करता है, मोरक्को पार्टिसिपेट करता है, और इजराइल के साथ एक संधि होती है, और उस संधि में यह बताया जाता है कि अब आप एक दूसरे की सहायता करें। उसके साथ साथ चीजें आगे बढ़ने लगी, लेकिन इजराइल वाज फेसिंग ए लॉट ऑफ सैंक्शंस, इजराइल वाज अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत सारा इकोनॉमिक सैंक्शन लगा है। इजराइल इज द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, बट इट इज नॉट एबल टू सेल इट आउट। स्विफ्ट पे ब्लॉकेज लगा है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता, तो इजराइल वाज ट्राइंग टू गेट इट्स वे थ्रू, कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। बट सी, इजराइलीज हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी हैव टू सेटन्स टू फाइट, द बिगर सेटन यूएस एंड द स्मॉलर सेटन इजराइल, बिकॉज इजराइल इन दिस रीजन, इजराइल डज नॉट वांट टू सी आई टू द ईरानीज और इजराइलीज के बीच आंख आंख में भी वो लोग देख नहीं सकते, वो लोग आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन्हें every time there was a deal, Israel somehow played placed things in a manner कि deal नहीं हुआ। चलते चलते आगे बात यहां तक पहुंच गई कि Israelis now thought that before the US strikes a deal or before Iran is brought into the mainstream, we should just exterminate, obliterate Iran. ईरान को पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दिया जाए, और बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे चीजें होने लगी। The region became volatile again, and then comes the fateful day of 7th of October 2023, because Iran is also a very martial country है, और उसके पास बहुत सारी उसने प्रॉक्सीज बैठाई हुई हैं। मैं सब बताऊंगा ये सारी चीजें। ईरान हैज अ लॉट ऑफ प्रॉक्सीज इन ऑल दीज पार्ट्स। ईरान भले यहाँ है, इजराइल यहाँ है, लेकिन ईरान की दोस्ती यहाँ पे कुछ लोगों से भी है जिन्हें इस्लामिक जिहाद नाम का एक ग्रुप है। सीरिया में तो बसर अल असद, देयर वाज अ लीडर, असद फैमिली वाज रूलिंग, एंड इट वाज द क्लोजेस्ट अलाई ऑफ ईरान। लेबनान में you have Hezbollah. Can you see this mark? I'm marking all of it with these dots. Islamic Jihad, these are all friendly units of Iran. Then in Yemen, it has Houthis. Also in Palestine, there is one group which is known as Hamas. I'm just writing it down so that it is clear to all of you. Syria में एक family होती है असद की family, Basar al-Assad. Assad family is again Shiite. और ये ईरान के दोस्त हैं। यहां पे लेबनान में है हेजबुल्ला। हेजबुल्ला तो पुराना है। यहां पे है हमास। हमास की कहानी भी डिटेल में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा हाउ डू कंट्रीज फर्स्ट क्रिएट मॉन्स्टर्स एंड दोज मॉन्स्टर्स बिकम फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर्स। एक ऐसा जिन आप तैयार करते हैं अपनी सुविधा के लिए, और वो जिन जब चिराग से छूट जाता है तो आपके सर पे बैठ जाता है। हमास वाज क्रिएटेड बाय इजराइल to counter the Palestinian liberation movement. And then Hamas became so out of control that now Hamas is hitting back into Israel. ये भी बात करेंगे हम। हमास। सीरिया में बात हो गई। इराक में एक बॉडी है जिसे कहते हैं इस्लामिक जिहाद, लिखूंगा मैं यहाँ, एक मूवमेंट है इस्लामिक जिहाद कहते हैं। येमेन में एक बॉडी है जिसे कहते हैं हूथीज। And Russia was also in support of Iran, but at this point in time, Russia is entangled in Europe. वो यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी खिंच गई, and the economic sanctions on Iran, on Russia, is not allowing Russians to get into this meddle of affairs. Do not meddle. They are this entire chain of events that Russians are facing. It is not allowing them to meddle into the affairs of West Asia. वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी। 2000 यहां पे क्या होता है, हमास अटैक्स इजराइल। हमास अटैक्स इजराइल एंड देन द डोमिनो स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। ये जिस दिन अटैक होता है, ये दिन भी बहुत खास, क्योंकि ये दिन है योम किपुर का। इस दिन यहूदी ज्यूज अपना त्योहार मनाते हैं, सारे लोग छुट्टी पे थे, और अटैक होता है। अटैक में लगभग 200 जाने जाती हैं, एंड देन थिंग्स सेट इनटू मोशन।
उसके बाद बहुत सुनियोजित तरीके से हर किसी को पकड़ा गया, हिजबुल्लाह को, हमास को, जितने भी प्रॉक्सीज थे ईरान के। अगर आप इसे गौर से देखें तो इसको ही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। आप ईरान से शुरू करके इराक, सीरिया, लेबनान, एक एक्सिस क्रिएट होता है जो कि रेजिस्ट करता है इजराइल की टेंडेंसीज को और यूएस की इंपीरियलिस्टिक, एक नियो इंपीरियलिज्म तो है ही। इंपीरियलिज्म की क्यों है? क्योंकि यूएस चाहता है कि वो वहां बैठा रहे अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, और उसका कोई ना कोई दबदबा इस पूरे रीजन पे रहे। उस रीजन को उस दबदबा उस दैट को दैट उस कमांड को रेजिस्ट करने के लिए ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज की मदद से यहाँ पे खड़ा किया है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू माइट हैव हर्ड ऑफ। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यहां से यहां, ईरान, सीरिया में। लेकिन इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में होने लगे छोटे छोटे छेद, क्योंकि बशर अल असद को हटा दिया गया, यहाँ से हुथीज को, हिजबुल्लाह का लीडर मारा गया। यू हैव माइट हैव हर्ड ऑफ दोस पेजर अटैक्स, आपने सुना होगा। हमास सफर्ड मेजर ब्लो, स्टिल एक्टिव बट सफर्ड ब्लोज। इस्लामिक जिहाद इज ऑल्सो इन इट्स डाउन टर्न। तो ये जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो नीचे जा रहा है। हुथीज दे आर फ्रिंज काइंड ऑफ यहाँ बैठे हैं सऊदी अरेबिया में, जो भी यूएस के इंस्टॉलेशंस हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग दैट इज वेस्टर्न और इंपीरियलिस्टिक, सो दे कैरी आउट समथिंग एट द बिहेस्ट ऑफ ईरान। ईरान के कहने पे ही करते हैं, बट दिस इज व्हाट वाज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। और उसमें 2023 के बाद किस तरीके से सेंध लगाई गई, हाउ इट वाज स्लोली एंड स्टीडीली पुल्ड आउट, धीरे धीरे सब चीजों को हटाया गया। और जब उन्हें लगा यूएस और इजराइल को कि नाउ इज द टाइम, दे लॉन्च्ड एन अटैक। और आपको पता है कि अटैक लॉन्च होने के बाद they killed the supreme leader Ayatollah Khamenei, and then a new supreme leader has been installed. But the major problem is that this entire region is the oil and natural gas supplier of the world, and Iran has retaliated back with all its might. अब ईरान क्या कर रहा है कि ये जितने भी देश हैं वहां पे कोई ना कोई यूएस के इजरायली इंस्टॉलेशंस हैं, यूएस के कुछ बेसेस हैं, उसको हिट कर रहा है। और यहाँ पे एक चीज है जो कि हम आगे समझेंगे, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरा आपको बताने का, मेरा आपको समझाने का मकसद ये है कि आप कुछ कुछ चीजों को समझें। आप इस बात को समझें कि हम आज की क्लास अपनी सीमित रखेंगे यहाँ तक। ये है हमारी आज की क्लास, दिस इज आवर टूडेज क्लास, ये हमारा आज का क्लास। एंड द अदर थिंग्स विच आर रिटन ऑन द बोर्ड, overthrowing of Iran's proxies, and then the March conflict, हम यहाँ पे आएंगे। आज हम ये करेंगे, फिर पीछे की बहुत सारी कहानियां सुनेंगे, समझेंगे, हिजबुल्लाह के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, हमास के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, वापस यहाँ आएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। 1979 was the year, and what happened, all of you please। ईरान के बारे में अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी देखें, ईरान के इधर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हियर यू हैव अफगानिस्तान, हियर यू हैव पाकिस्तान, एंड यू हैव a sizable population of Shia Muslims in Pakistan too। यहाँ आए तो इराक है, यहाँ पे अर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पे इट ऑल्सो टचेज टर्की, इट टचेज इराक, ऑल राइट, एंड देन इट ओपन्स अप इनटू दिस अरेबियन सी। ये है पर्शिया का गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर मैं स्ट्रेट की बात करूं, स्ट्रेट क्या होता है, इज अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज। ये एक पतला सा स्ट्रेच है पानी का जो कि दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एंड आपने न्यूज़ में सुना होगा हॉर्मुज पे कैप्चर हो गया, हॉर्मुज पे जहाजें रुक गई, एलपीजी की शॉर्टेजेस हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं, सब चीज़ सीखेंगे। लेकिन आज के लिए बस हम यहाँ तक रुकेंगे कि ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है पर्शियन गल्फ, बिकॉज दिस वॉज एट वन पॉइंट इन टाइम द पर्शियन एम्पायर, इसलिए इसका नाम है पर्शियन गल्फ। गल्फ क्या होता है सर? व्हाट इज गल्फ? गल्फ इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अ वाटर बॉडी टू अ लैंड मास। Gulf connects water body to landmass। तो ये गल्फ है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे, ये रेड सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। टर्की, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, यूनाइटेड अरब इमिरात,
राज घराने हैं, सातों को साथ ले जाए तो हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब इमारात्स। ये है कतर, ये छोटा सा हरा आपको बहरीन दिख रहा है, ये वायलेट रंग का आपको कुवैत। कुवैत, आई होप यू कैन सी दिस, आई होप यू कैन सी दिस मैप प्रॉपरली। यहाँ पे इजराइल है which has been there since 1948 and which has been a bone of contention not only for the Arab countries for a very long period of time, but ईरान के लिए तो है ही। यहाँ पैलेस्टाइन यहाँ छोटा है, लेबनान यहाँ है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये जॉर्डन है। जॉर्डन का एक रिवर है जिसे जॉर्डन रिवर कहते हैं, उसके वेस्ट में जो हिस्सा है उसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कौन सा देश मेडिटेरेनियन में खुलता है, मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो सारी चीजें आपके बोर्ड पे लिखी है। अब बात शुरू होती है कि ईरान कैसे बना, हाउ डिड ईरान केम इनटू बीइंग। ईरान की कहानी बहुत पुरानी है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग हमारे देश में भी हैं जो ईरानी सभ्यता से आते हैं, ईरानी सरनेम आपने सुना होगा, बमन ईरानी, स्मृति ईरानी, ये लोग, अरुणा ईरानी। बट हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, उतना पीछे हम कब जाएंगे, जब हम सिविलाइजेशंस की बात, हम वहां तक भी जाएंगे, हम पर्शिया तक भी जाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा उसे लिमिट रख रहे हैं क्योंकि हमें इसकी बात करनी है। सफाविद एम्पायर आता है 1501 से 1736 तक, यहाँ पे सफाविद्स, ठीक है। 1736 में द सफाविद एम्पायर दैट कोलैप्स्ड, सफाविद कोलैप्स कर गया। और जब सफाविद यहाँ पे है, जब सफाविद यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन राज कर रहे हैं, व्हेन यू हैव सफाविद देयर यू हैव ऑटोमन्स हियर। जब यहाँ पे सफाविद के बाद अफशरीद आते हैं, फिर जंड आते हैं, फिर कजर डायनेस्टी आती है, क्योंकि सफाविद के बाद बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन, कमज़ोर हो गई पूरी राजनीति यहाँ की। और यहाँ पे सिर्फ एक नामचीन लीडर आता है जिसे हम नादिर शाह कहते हैं, आपने नाम सुना होगा नादिर शाह, माइट हैव हर्ड ऑफ दिस नेम नादिर शाह। कजर 1794, और 1794 में कजर डायनेस्टी वाज आल्सो ए वेरी वीक डायनेस्टी। अब कजर के बाद यहाँ पे बहुत साल तक चीजें चली आगे, और आपको ध्यान रहे कि नाउ वी आर इनटू द एज ऑफ कोलोनाइजेशन, और कोलोनाइजेशन के साथ साथ ब्रिटेन का एक्सपेंशन होना शुरू हो गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो 1905 का है। 1905 में ब्रिटेन ऑन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड अर्स्टवाइल यूएसएसआर, they decided that they will come up with some solutions to Iran, and what was the solution, मुझे लगता था हर चीज का solution कॉन्स्टिट्यूशनल रिवॉल्यूशन है। 12 दिसंबर 1905 में यहाँ पे संविधान की स्थापना होती है, और उसके बाद एक डायनेस्टी बैठती है जिसे हम पहलवी डायनेस्टी कहते हैं, पहलवी डायनेस्टी। और पहलवी डायनेस्टी में कौन आता है यहाँ पे, रजा पहलवी, रेजा पहलवी, ठीक है। रेजा पहलवी कम्स इनटू पावर, और इसे हम थोड़ा विस्तार में यहाँ पे देखेंगे। रेजा पहलवी कम्स इनटू पावर। अब 1925 में रेजा पहलवी कम्स इनटू पावर, बट 1925 के पहले एक साल है जो कि बहुत जरूरी है, साल है 1917, और ये साल जरूरी इसलिए है क्योंकि साल होता है रशियन रिवॉल्यूशन। एंड see the revolution came up with a communist kind of a setup, और कम्युनिज्म में लाख बुराइयां अच्छाइयां हों उसके डिबेट हम बाद में कर सकते हैं, बट दे आर ऑफ प्रिंसिपल दैट ये इंपीरियलिज्म, ये सही चीजें नहीं है। विस्तारवाद, आप किसी दूसरे देश पे चले गए, उस पर चढ़ाई कर दी, उसको कब्जा कर लिया, ये सही चीज नहीं है। तो रशिया ने कहा, यूएसएसआर एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनका कहना था कि नहीं, इन पे वी विल नॉट लाइक ऑक्यूपाई देम, वी विल कम अप विथ अ सोल्यूशन टू देम। तो रशिया ने बोला कि तो I will not be interested, because Russia, USSR and Britain were playing that great game। रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत फेमस फ्रेज है, ग्रेट गेम। ग्रेट गेम का मतलब इस पूरे रीजन को जो सबसे ताकतवर लोग थे वो अपने आप में बांटना चाहते थे, दैट वाज नोन एज द ग्रेट गेम। और रशिया ने कहा कि नहीं, मेरा ये ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। फिर क्या किया गया कि एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रिटेन फैमिली वाज चूजन, एंड पीपल फ्रॉम दैट फैमिली वाज मेड द लीडर ऑफ दिस ईरानियन ज्योग्राफी। और वो फैमिली कौन सी थी, पहलवी डायनेस्टी, पहलवी डायनेस्टी। और पहलवी डायनेस्टी में किसको चुना गया, शाह रजा रजा पहलवी, रजा पहलवी को चुना गया। 1925 में ही बिकम्स द लीडर ऑफ दैट कंट्री, एंड ही रिमेन्स द लीडर टिल 1941।
41 तक यही वहां पे लीडर रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे और रिवॉल्यूशंस हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल ईथोस एंड वैल्यूज आई। और आप एक बात गौर करें, प्लीज कीप समथिंग इन माइंड, यू माइट हैव सीन सम प्रोटेस्ट्स against the Ayatollah in the last 1-2 years. These protests were possible because they had some constitutional guarantees. वहां पे उनकी पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, और उस मजलिस ने बहुत सारी गारंटीज लोगों को फिर भी दी हुई थी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ थियोक्रेसी। उसके बावजूद भी सड़क पर निकल के प्रोटेस्ट तो कर रहे थे लोग। आगे बढ़े 1941, एंड देन हिज सन केम इनटू पावर, एंड हिज सन वाज मोहम्मद शाह रजा पहलवी, और इन्हें पॉपुलरली कहा जाता है शाह ऑफ ईरान, शाह ऑफ ईरान। He chooses a person to become the prime minister, क्योंकि सेटअप पार्लियामेंट का सेटअप ऐसा है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर की भी जगह है। प्राइम मिनिस्टर he chooses मोहम्मद मोसादेक, Mohammad Mossadegh as the prime minister in 1951, and he remains only for 2 years. क्यों? क्योंकि 1951 में जैसे ये आते हैं, and please understand this, Pahlavi were the ये खास किसके हैं? These are the favorites of Britain and US also. ये उनके खास लोग हैं। तो ईरान में जो ऑयल कंपनी थी, इसे हम कहते थे एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी, एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी। और इसके साथ एक अग्रीमेंट था इनका कि 1993 तक कम रेट्स पे इनको ऑयल मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये मोसादिक साहब आते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस जो ऑयल कंपनी है इसको नेशनलाइज कर देंगे। और नेशनलाइज करते ही दे स्टार्टेड फीलिंग बैड अबाउट इट बिकॉज दे हैड दोज मोटिव्स। उन्हें लगता था कि हम अपना बंदा बैठाएं और अपने बंदे को बैठा के हम अपना काम निकलवा सकते हैं। तो इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही इसको नेशनलाइज किया जाता है, ही इज डिस्पोज्ड, इसे बोला जाता है आप बाहर का रास्ता देखिए। और इसके जाने के बाद, आफ्टर ही लीव्स, this Shah becomes the dictator of Iran. And once he becomes dictator, he also introduces a lot of things. Why? Because he was actually a favorite of these Western countries. So he starts westernizing the country. Westernizing the country. He starts playing at the hands of US basically. Britain भी धीरे धीरे तो it was seeing last days of its might. तो अब जो बचा वो US ही था। वेस्टर्न किया उसे बहुत सारी, लेकिन he was dictatorial. फिर ये किसका खास हो गया? इजराइल का। सो टिल 1979 यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इजराइल के जो दो सबसे अच्छे दोस्त थे वो यूएस और इजराइल ही था। 1979 तक द टू बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इजराइल, ईरान वाज इजराइल एंड यूएस। 79 के बाद ये बात एक अलग हुई। तो द टू एलाइज, कौन कौन एलाई है भाई? यूएस है और इजराइल। नॉट ओनली दैट, he also allowed the Israeli spy or the Israeli agency, the external intelligence agency Mossad, to completely dictate terms to MOIS Iran. MOIS is Ministry of Intelligence and Security. I'll write Ministry of Intelligence and Security. Ministry of Intelligence and Security. तो शाह ने ये सारी चीजें की। अब शाह के ये सारी चीजें करने से दिक्कत क्या हुई कि लोगों में धीरे धीरे रिजेंटमेंट बढ़ता गया। पीपल स्टार्टेड फीलिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज sold the country to the US. The Western powers, the imperialistic powers, they have captured the mind and the society both. वो दिमाग पे भी कब्जा कर रहे हैं हमारे। दूसरा, एक बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली ड्रिवन भी थे लोग, क्योंकि the country has seen a lot of prominent clerics, Shia clerics. तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो 1979 आते आते क्या हुआ कि इन्हें लगा कि नहीं भाई, दिस शाह इज रूइनिंग द कंट्री, रूइनिंग द सिविलाइजेशन, रूइनिंग द रिलीजियस थ्रेड ऑफ द कंट्री। और 78 से रिवॉल्यूशन शुरू होता है। 70, बहुत लोगों का कहना है कि 78 में दिस KGB, they also had an influence, but we are not going into conspiracy theories. KGB का कहना था कि यूएस का इतना इन्फ्लुएंस हो गया है, एंड माइंड यू दिस इज द पीक कोल्ड वॉर एरा। ये कोल्ड वॉर का सबसे भीषण एरा की बात कर रहा हूं मैं।
आई एम टॉकिंग अबाउट 1979, 1978. दिस पीरियड वाज हाइट ऑफ कोल्ड वॉर। और यहाँ पे घुस के बैठा कौन है? यूएस। ऊपर है यूएसएसआर। तो यूएसएसआर, बहुत लोगों का ऐसा कहना भी है, लॉट ऑफ राइटर्स आल्सो से दिस, दैट केजीबी हैड अ लॉट टू डू विथ व्हाट, विथ द डिस्पोजल ऑफ शाह। शाह के हटाने में केजीबी का भी बहुत बड़ा हाथ, ऐसा लोगों का कहना है। वी विल नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, वी विल चेक व्हाट इज रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री। ये सारी चीजें हुई और उसके बाद क्या होता है कि शाह को हटाया जाता है। शाह को हटाया जाता है, हम 78 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे एंड द फॉल ऑफ शाह। अब ये कौन सा इवेंट था ब्लैक फ्राइडे? ब्लैक फ्राइडे वो दिन था जिस दिन बहुत सारे प्रोटेस्टर थे सड़क पे, और शाह वाज द डिक्टेटर ऑफ दैट कंट्री, ही ऑर्डर्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में लगभग 2000 से ज्यादा लोग मरे। दैट वाज अ फ्राइडे एंड दैट इज नोन एज ब्लैक फ्राइडे इन द हिस्ट्री ऑफ ईरान। और उस दिन लोगों ने तय कर लिया कि अब तो भाई शाह के अंदर हम लोगों को नहीं रहना है। दिस इज 8/9/1978, 1978, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें फिर होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं और जिसकी वजह से चीजें बदली। दिस इज एन इन्फोग्राफिक। तो आप यहाँ पे देखें कि 8/9/1978 8/9/1978 वाज द ब्लैक डे, जिस दिन प्रोटेस्टर्स, कौन थे वो प्रोटेस्टर? लोकल लोग, जो ईरानी लोग थे, वो प्रोटेस्ट किसके विरुद्ध कर रहे थे? दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द शाह। व्हाई? बिकॉज ही वाज अ डिक्टेटर, एंड they were protesting against all the western influence which was at the behest of the US. They were also protesting against Israel because Israel has completely captured the defense and intelligence circuit of Iran. तो थ्री pronged अप्रोच था। पहला, शाह को हटाना चाहते थे, यूएस के जितने फोर्सेस थे उन्हें हटाना चाहते थे, इजरायली इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते। आइए आगे बढ़ते हैं, and we will see that on 1st of February who comes back? A person named Khomeini, whose full name is Ruhollah Khomeini। 1963 से ये बंदा टर्की में बैठा है, एग्जाइल में। He is in exile and he comes back because he is the one whom people now wishes to come back and take the reins of the country. 11 फरवरी 1979 को क्या होता है? मोनार्की गिरती है। किसकी मोनार्की? शाह की मोनार्की। शाह फॉल्स डाउन, शाह चले गए, आउट आउट। नवंबर 9 को एक बहुत अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द ईरान एंड द यूएस। बहुत बार ऐसा होता है, लीडर अगर 2 कदम चल रहा है तो लीडर के फॉलोअर 50 कदम दौड़ गए। वही हुआ, ये साहब वापस आए, बहुत पैशनेट, बहुत सारे स्पीचेस हुई इनकी। इनके जो फॉलोअर्स थे वो इतना चार्ज्ड अप, इतना पैशनेट हो गया कि वो यूएस एम्बेसी में घुस जाते हैं और 52 लोगों को बंदी बना लेते हैं। दे टेक होस्टेज 52 पीपल, 52 डिप्लोमेट्स, आई टेल यू, एंड डिप्लोमेट्स आर कवर्ड अंडर अ कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन। उस कन्वेंशन के विरुद्ध जाके वो 52 डिप्लोमेट्स को पकड़ के बंदी बनाते हैं और 444 दिनों तक बंधक रखते हैं। They are kept hostage for 444 days. Please. आगे क्या होता है? आगे की कहानी देखते हैं। Then he becomes the supreme leader. Supreme leader बन जाते हैं ये। He becomes supreme leader in 1979 और यूएस एम्बेसी होस्टेज का जो क्राइसिस है वो किस दिन होता है? 4 नवंबर को। जिमी कार्टर कौन थे साहब? He was the US president at that point in time. तो he is Mr. Ruhollah Khomeini. Please distinguish between the names. He is Khomeini. The guy, the cleric or the supreme leader who was killed is Khamenei. ठीक है, अभी जो साहब आए हैं उनका नाम मुज्तबा खमेनी, इज नॉट खोमेनी, इज खमेनी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आते हैं वापस और देखते हैं फिर कौन कौन सी चीजें हुई, क्योंकि ये 40 साल हमारे लिए जरूरी है। 78 में रिवॉल्यूशन शुरू होता है, शाह को हटाया जाता है, रुहोल्लाह खोमेनी वापस आते हैं, यूएस के डिप्लोमेट्स को होस्टेज लिया जाता है। अब चीजें स्टार्टेड टू फ्लेयर अप, चीजें बिगड़ना शुरू हो गई। इजराइल को पहली बार ऐसा लगा कि अब उन्हें वापस जाना चाहिए। इजराइल भी अपने जितने भी एम्बेसी के लोग होते हैं उनको बाहर निकाल के ले जाती है। 1982 में अगर आप ये मैप देखें, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी। यहाँ पे इजराइल के साथ सदर्न लेबनन टच करता है। दिस इज सदर्न लेबनन। इजराइल लॉन्चेस एन ऑपरेशन हियर 1982 में, और 1982 में क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे थे, इजरायली एम्बेसी में हमला हो रहा है,
इजरायली ऑफिसेज में सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही है, तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है। एंड दिस इज हाउ ईरान इज ऑपरेटिंग वाया द प्रॉक्सी। तो लेबनान में हमला शुरू कर दिया 1982 में। जब 82 में हमला शुरू किया तो उसके रिजल्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिजबुल्लाह। 82 में कहाँ आ गए हम? यहाँ पे आ गए। और इजराइल ने जो लॉन्च किया ऑपरेशन, उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशन पीस फॉर गैलीली। पीस फॉर गैलीली। उसी साल सन 1982 में हिजबुल्लाह का जन्म होता है। 1982 हिजबुल्लाह कम्स इनटू एक्शन। और हिजबुल्लाह ने पहली बार सुसाइड अटैक किया कहाँ पे? 1982 नवंबर 11। और इसमें जो मार्टियर हुए फेमस है वो ईरानी हिस्ट्री में, ईरान में भी और लेबनान में भी लोग उनका बहुत ख्याल, बहुत नाम लेते हैं। उनका नाम है अहमद कासिर। 1983 में बेरूत, जो कि लेबनान की राजधानी है, वहां पे बॉम्बिंग्स होती हैं और पहली बार यूएस के मरीन्स मरते हैं। तो इस बार द थ्रेट वाज गिवन नॉट ओनली टू द इजराइलीज हु वर देयर नेबर्स, बट अ थ्रेट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द यूएस एंड आल्सो द फ्रेंच पीपल हु वर आल्सो ट्राइंग टू इंटरवीन। जो भी इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें एक सीधा तगड़ा मैसेज दिया गया कि अगर आप हमारे अफेयर्स में मेडल करेंगे, हमारे अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे, तो आपकी भी हशर, आपका हशर भी खराब होगा। और 83 में ये चीजें होती हैं। 83 के बाद अब समझिए थोड़ी चीज। ये 1982 बेरूत में बॉम्बिंग होती है 1983 में। और इस चीज का ख्याल करिए कि ये जो साल है 83, यहाँ पे एक और चीज छिड़ चुकी है। वो कौन सी चीज है? वो चीज है ईरान इराक वॉर। ईरान इराक वॉर भी शुरू हो गया है। ईरान इराक वॉर। इराक में, इराक की डेमोग्राफी ऐसी है, 60% इज शिया, 20% इज सुन्नी एंड 20% आर कुर्द। The leader of Iran at that point in time is Saddam Hussein, who's actually propped up by the US. US ने ही उसे यहाँ पे बिठाया है, और शायद इसलिए भी बिठाया है क्योंकि वो ईरान को चेक कर सके, चेक में रख सके। 8 सालों तक ईरान और इराक का युद्ध चलता है, और युद्ध चलते चलते बहुत सारी चीजें होती हैं ईरान और इराक में। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज गेट एग्जॉस्टेड। ईरान, क्योंकि सैंक्शंस लग चुके थे उस पर, वो तो ज्यादा ही इकोनॉमिकली ड्रेन हो जाता है। ये बात है सन 1988 की, और ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स एज इफ इराक हैज वॉन द वॉर। सद्दाम हुसैन started claiming victory and he became very pompous also. वो बहुत ज्यादा arrogant भी हो गया। उसे लगा कि कुवैत तो अब मेरा ही है। He thought that Kuwait belongs to me. He thought that Kuwait belongs. कुवैत आप देख रहे हैं यहाँ पे, इराक यहाँ पे, कुवैत यहाँ। उसे ऐसा लगा कुवैत को मैं हथिया लूं, और कुवैत हथियाने के चक्कर में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कुवैत हथियाने के चक्कर में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसे कहते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर इन द ईयर 1991, where Iraq annexed Kuwait and US launched an attack on Iraq. जब यूएस ने इराक पे अटैक लॉन्च किया, तो आपको एक बात और समझाऊं मैं कि यूएस के अटैक लॉन्च करते ही यूएस को इराक में घुसने की जगह चाहिए थी। हु हेल्प द यूएस? हु हेल्प, किसने मदद की यूएस की? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देयर वाज अ आइस ब्रेकिंग मोमेंट बिटवीन इरानियंस एंड द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स को कहा ईरान ने कि भाई आ जाओ, वी कैन हेल्प यू। इरानियंस हेल्प यूएस की मदद की। ठीक है, दिस इज 1991। अब इन सब करने के बाद ईरानियंस को ऐसा लगा कि भाई अब तो यूएस हमारे साथ आ सकता है, वी कैन नेगोशिएट, वी कैन कम अलोंग, गेट ऑन टर्म्स। देखिए, अब युद्ध इज नॉट, यू हैव टू चेक योर इकोनॉमी आल्सो। द इकोनॉमी वाज इन टैटर्स, हालत खराब हो गई थी, सैंक्शंस लगे हुए थे। तो उन्हें लगा कि अब चीजें बेहतर होनी शुरू होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, 1991 में मैड्रिड कॉन्फ्रेंस किया जाता है, मैड्रिड समिट या कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है जॉर्डन को, लेबनान को, सीरिया को, इजिप्ट को। कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया है? इजराइल और पैलेस्टाइन के प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। और यहां पे बुलाया नहीं जाता है किसको? ईरान को।
ईरान की समस्या दो ही थी। ईरान की समस्या 1979 में कि आप एक तो यूएस को यहाँ पे आपने सारी चीजें वेस्टर्नाइज कर दी हैं, इंपीरियलिस्टिक टेंडेंसीज दिखती हैं यहाँ पे। दूसरी चीज, आपने पैलेस्टीनियन कॉज को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। यू हैव कंप्लीटली रेप्यूडिएटेड द पैलेस्टीनियन कॉज, पूरी तरीके से परित्याग कर दिया है। इसीलिए हम अगेंस्ट यूएस हैं, बिकॉज वी डोंट वांट दैट इंपीरियल maniac in our geography. The second thing, we don't want to repudiate, we do not want to like corner the Palestinian cause. और इसीलिए वो इजराइल के खिलाफ भी गए, यूएस के खिलाफ भी गए। इसीलिए आपने इस पूरे एपिसोड का शीर्षक अगर ध्यान से देखा है तो इस एपिसोड का टाइटल है ईरान वर्सेस इजराइल एंड द यूएस। ईरान की भी समस्या, ईरान से भी समस्या, यूएसए से भी समस्या। तो 1991 में यह हो गया भाई। अब 1991 में यह हो जाने के बाद फिर से एक चीज होती है 1993 में ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड में भी ईरान से कोई सहमति नहीं ली जाती और यहाँ पे बोला जाता है कि इजराइल और पीएलओ में एक संधि हो गई। इजराइल हैज स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इजराइल हैज आल्सो रिकॉग्नाइज कि एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे रहेगा और 5 साल का समय हमें मिलेगा कि हम मेज पे बैठे, वी विल सिट ओवर टेबल, अक्रॉस अ टेबल एंड डिस्कस थिंग्स, वी विल नेगोशिएट थिंग्स आउट। ये बात है सन 1993 की। अब ईरान को ऐसा लगा कि वी आर कॉर्नर्ड, हमें कॉर्नर कर दिया गया। दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अस, दे आर नॉट इवन लुकिंग अबाउट अस। धीरे धीरे ईरान स्टार्टेड डेवलपिंग कैपेसिटीज। प्लीज अंडरस्टैंड, आप इस बात को समझिए कि इतनी दूर तक ईरान ने थोड़ा एक कदम लिया भी तो यूएस एंड इजराइल दे डिड नॉट रेसिप्रोकेटेड, उन्होंने रेसिप्रोकेट नहीं किया, उन्होंने मित्रता का हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अब ईरान को लगा कि हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, पहले तो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करनी शुरू की और टेक्नोलॉजी के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। 2001 में देयर इज एन इवेंट जहां पे यूएस पे अटैक होते हैं 9/11 एंड द यूएस लॉन्चेस अ वॉर ऑन टेरर। उन्हें पता था कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, पीपल हु हैव डन दिस, दे आर हाइडिंग इन अफगानिस्तान, तालिबान इज गिविंग शेल्टर टू देम। So the US wanted to invade Afghanistan. US invaded Afghanistan because they had to fight the Taliban, and no prize to guess who helped them. Iranians again. Iran helped them. ईरान ने उन्हें हेल्प किया यहाँ पे घुसने में। आप इस मैप को देखें तो आपको फिर से वो चीजें समझ आएगी। इस मैप को अगर आप देखें तो आपको फिर से वो चीज समझ आए कि ईरान है यहाँ पे, दिस इज ईरान एंड दिस इज अफगानिस्तान। यूएस गॉट हेल्प फ्रॉम ईरान। फिर से ईरान ने फिर से वो दोस्ती का एक संकेत दिया कि वी कैन गेट अलोंग, हम एक साथ कदम मिला सकते हैं। 2001 में भी उन्होंने हेल्प लिया लेकिन यूएस डिड नॉट रेसिप्रोकेटेड, डिडंट रेसिप्रोकेट। साथ साथ में समस्याएं तो चल ही जा रही थी, बहुत सारी समस्याएं तो चलती आ रही थी। यूएस के, ईरान के बहुत सारे प्रॉक्सीज खड़े हो गए थे। इस्लामिक जिहाद इन इराक, इस्लामिक जिहाद इन इराक, आपका लेबनान में हिजबुल्लाह, उसके अंदर ही हमास, सीरिया में असद की सरकार, हूथीज इन येमेन। सो देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच वर सिमरिंग, ब्रूइंग, धीरे धीरे पक रहे थे। 2011 में अरब स्प्रिंग होता है और इस अरब स्प्रिंग की चर्चा हम विस्तार में करेंगे, लेकिन मैं आपको बस बता दूं एक बात कि 2003 में एक चीज और हुई, उसे भी यहां पे देख लें। 2003 में नाउ द यूएस एंटर्ड इराक घुस गए और सद्दाम हुसैन को भगा दिया। सद्दाम हुसैन को, सद्दाम हुसैन के भागते ही ये पूरा जो विश्व का हिस्सा है दैट केम इनटू अ टर्मोइल। आपको पता है बहुत सारी चीजें हुई, उसके बारे में एक अलग सी क्लास चाहिए, वो बड़ी क्लास। उसके हटते ही यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो गया, बहुत सारे आउटफिट्स ऐसे आ गए, अलकायदा बिकेम प्रोमिनेंट, ISIS एक आपने सुना होगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस होने लगे। 2011 में एक चीज और हुई, 2011 में एक चीज और हुई जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब स्प्रिंग शुरू हुआ टूनिशिया में और टूनिशिया की सरकार के जो चीफ थे, द टूनिशियन हेड was disposed of. The Tunisian head was disposed of. His name was Ben Ali. टूनिशिया में बेन अली इन्हें भगाया गया, हटाया गया। इजिप्ट में होसनी मुबारक हटाया गया। लीबिया में गद्दाफी हटाया गया। 2011 की बात कर रहा हूं।
अब धीरे धीरे ये एक बनने लगा कि भाई पूरा डिस्टेबलाइज कर चुका है. एंड देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट कम्स इनटू द पॉलिटी ऑफ यूएस की पॉलिटी में डेमोक्रेट्स जीत के आते हैं. डेमोक्रेट्स दे विन द इलेक्शन एंड ओबामा बिकम्स द president of the United States, and he initiates something that is marvelous. He initiates something that was the need of that hour. वो क्या करता है? ओबामा साहब का कहना है कि we should initiate a deal with Iran. हम एक डील करते हैं ईरान के साथ जहां पे अगर वो न्यूक्लियर बना रहे हैं हम उस पर रोक लगाएंगे और उसके बदले में हम धीरे धीरे सैंक्शंस हटाएंगे. और एक बात, इन द बेड ऑफ एवरीथिंग ईरान की तरफ से एक बहुत शायद लेजिटिमेट भी उनका ये कहना है कि भाई सैंक्शंस हटाओ हमसे, यू नीड टू रिमूव द सैंक्शंस अपॉन अस. हम पे जो सैंक्शंस लगाए हैं उन्हें हटाओ और वी वांट टू गेट इनटू द मेन स्ट्रीम. तो ओबामा ने एक सूझबूझ दिखाया और ओबामा ने कहा कि ठीक है भाई, हम ये हटाएंगे, सैंक्शंस हटाएंगे और धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाएंगी. 2015 में एक डील की बात होती है और वो डील है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. इसमें पार्टिसिपेट करते हैं P5 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. कौन है? यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड रशिया प्लस जर्मनी. इसी को P5 बोलते हैं. P5+1 एंड ईरान में एक डील होगा. इस डील के तहत ईरान विल रिस्ट्रिक्ट देयर इनरिचमेंट. वो अपना जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं रिस्ट्रिक्ट करेंगे. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस पर एक निगहबानी करेगी. वो देखेगी कि ये इनरिचमेंट कहाँ तक जा रहा है. सिर्फ सिविल न्यूक्लियर तक होना चाहिए, अदरवाइज कंप्लीटली अबैंडन करना पड़ेगा. सारी चीजें अच्छी चल रही थी. देन कम्स द फेटफुल ईयर व्हेन द रिपब्लिकन्स कम इनटू पावर. फेटफुल और अदरवाइज आई डोंट नो, दिस इज डिबेटेबल. और रिपब्लिकन वापस आते हैं. ट्रंप गेट्स इनटू पावर. ट्रंप साहब वापस आते हैं 2018 में. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो एक तख्ती उठाते हैं. उस तख्ती पे लिखते हैं कि आई from this point in time, effective immediately, I discard everything that was there in the deal. I disregard the deal. I'm not going to strike any deal with the Iranians, which is actually creating an axis of resistance, an axis of evil. This is the famous axis of evil thing. वो कहते हैं कि वो एक्सिस ऑफ इविल है जो कि मिडिल ईस्ट को अपनी तरीके से या वेस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है और हम इसे अलाउ नहीं कर सकते. दिस वाज द ईयर 2008. तो अगर मैं इन सारी चीजों को हटाऊं यहां से और फिर से उसी कहानी पे आऊं जहां पे हमने शुरू किया था, तो हमने समझा, हमने सीखा कि 1979 से 2018 तक कौन कौन सी चीजें चली. जब हम अगली बार मिलेंगे तो बातें करेंगे 79 के पहले की, और जब उसके बाद मिलेंगे तो बातें करेंगे इसकी, या पहले इसकी बात कर लेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से आपको एक छोटा सा प्रीमाइस मिल गया है कि ये चीजें हुई. एंड दिस वाज अ वॉर दैट वाज गोइंग ऑन बट नो वन वाज डेयरिंग इट टू कॉल अ वॉर. एक चल ही रहा था अंदर अंदर, भीतर भीतर, पर्दे के पीछे ये सारी चीजें चल रही थी. एक वॉर लाइक सिचुएशन तो था ही, विच हैज फ्लेयर्ड अप. दिस इज अ स्ट्रेटेजिक, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल वॉर. स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल वॉर दोनों है ये. और हर किसी को पता था कि whenever it will turn into a full blown war, the entire West Asia will blow up into ashes. देखिए हालत पूरी दुनिया की. ऑयल का संकट मंडरा रहा है, नेचुरल गैस का संकट मंडरा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं. लेकिन the economies of many countries have started slowing already. इंपोर्ट बिल हर किसी का बढ़ने लगा है. तो ये मोटा मोटा कहानी आपके लिए है. इसके पीछे चलेंगे, बहुत रोचक कहानियां हैं यहाँ पे. दिस हिस्ट्री इज फिल्ड विथ great stories that can guide you in understanding the current date geopolitics. आप इसको समझे बिना आज के भू राजनीति को समझना आपके लिए मुश्किल है. मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा समझा है. मुझे उम्मीद है कि अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो चीज़ों को एक संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करेंगे. You have already set a premise for yourself and you will now fix the Legos in the correct pattern. I hope this session has helped you. I am very soon coming back with the episode 2. My name is Saket Saurav. Thank you.